Good morning, friends. Today we are going to continue with LLP Act 2008. In the previous lecture, I have given you the introduction about LLP. I have explained you the features of LLP and why there was a need to introduce this act. Why there was a need to introduce this act was just because there were certain disadvantages under the Partnership Act 1932 and Companies Act 2013. तो ये सब डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए दे हैव कम अप विद अ LLP Act 2008. Today we are going to refer certain advantages of LLP form. On your screen you can refer that. What are the advantages of LLP? First, foremost and important advantage is a limited liability. Partners की liability in the case of LLP will be limited to the extent of a capital contribution promised by them. उनकी liability जितना उन्होंने capital contribution का promise किया है वहां तक का ही liability रहेगा. Liability will not be unlimited, unlike a Partnership Act 1932. Partners की liability in the case of LLP will be unlimited if he is found committing any kind of a fraud. अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया है तो उस सर्कमस्टेंसेस में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी अनलिमिटेड. उसने जानबूझ के अगर कोई लॉसेस इनकर्ड किया और लायबिलिटी इनकर्ड कर दी, इन दैट सर्कमस्टेंसेस द कर्टन विल बी रिमूव और पार्टनर्स को पकड़ा जाएगा जिसने फ्रॉड कमिट किया है. लेकिन अगर सो फार द फंक्शनिंग इज स्मूथ, तो in that circumstances the liability of the partners will be limited. So what they have given on your screen, you can refer that. The liability of partner is limited to the extent of contribution towards LLP except in case of intentional fraud. अगर जानबूझ के कोई fraud commit करता है और wrongful act or omission or commission by the partner. Second advantage of LLP form is flexibility. Now in this case there is quite flexibility. You can form, you can dissolve at any point. Partners can come, partners may go at any point of time. जब भी partners को लगता है वो he can retire from the LLP. So there is a flexibility provided by this particular form. What it has been given, LLP provides flexibility of a traditional partnership to its member in organizing their internal structure based on mutual LLP agreement. जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या था कि उसका फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन. सिर्फ डिसएडवांटेज क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि वहां पे लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. लेकिन एलएलपी के अंदर वो पर्टिकुलर डिसएडवांटेज रिमूव कर दिया और लायबिलिटी को क्या कर दिया यहाँ पे लिमिटेड. और उसके जो एडवांटेजेस थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो एडवांटेजेस यहाँ पे भी उन्होंने कंटिन्यू किए. एलएलपी एक्ट 2008 में द एडवांटेजेस which were attached with partnership act 1932 they are continued even under the LLP act 2008. तो यहाँ पे क्या बोला है, LLP provides flexibility of traditional partnership. जो इंडिया का अगर केस देखा जाए तो जनरली पीपल कम विद प्रोप्राइटरशिप और मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप और अ प्रोप्राइटरशिप. तो दे आर आई मीन पीपल आर यूज्ड टू विद द ट्रेडिशनल, यानी जूने फॉर्म में बिजनेस करने के लिए दे आर एक्वेंट विद दैट. उनको लगता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है रादर देन गोइंग विद द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. तो वो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप है उसको एलएलपी में भी कंटिन्यू किया गया है. सो व्हाट इट सेज, एलएलपी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप टू इट्स मेंबर इन ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एलएलपी एग्रीमेंट. दैट मींस दे हैव गिवन क्वाइट इंडिपेंडेंस टू द पार्टनर्स. एलएलपी ने पार्टनर्स को इंडिपेंडेंस दिया है कि आप आपके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें भी उसी तरीके से उनको पार्टनरशिप डीड द्वारा दे कैन राइट देयर ओन क्लॉजेस, दे कैन फिक्स देयर ओन राइट्स एंड लायबिलिटीज. इन द सेम मैनर दैट एडवांटेजेस आर इवन कंटिन्यू अंडर द एलएलपी फॉर्म. थर्ड एडवांटेज ऑफ एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. This is an advantage of company. This is not available in the case of partnership registered in the Partnership Act 1932. This is an advantage is given to a companies. So advantage of that particular, if of a
पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है वो एडवांटेजेस एलएलपी में लाया गया है कि यहाँ पे पार्टनर्स को और एलएलपी को सेपरेट रखा गया है। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड होंगे इट विल बी इन द नेम ऑफ अ पार्टनरशिप। So that's the reason partnership has given a separate structure. It is therefore called as a separate legal entity. So LLP has a separate legal entity. Next is perpetual succession. Perpetual succession, it will continue year after year. जैसे कि partnership registered under the Partnership Act 1932. If there is a death or if there is a retirement of any partner and if the clause in a partnership deed is not available, that particular partnership has to get dissolved. लेकिन यहाँ पे perpetual succession जो कंपनी का एडवांटेज है, perpetual succession क्या बोलता है कि members में come and go, कंपनी लेकिन कंटिन्यू होगा। तो उसी तरह एलएलपी के केस में भी एलएलपी को एक perpetual succession का एडवांटेज दिया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि पार्टनर्स में come and go, लेकिन LLP will continue year after year. What it says, LLP has a perpetual succession. The death, insolvency, unsoundness of its member that is partner does not affect his existence. Member may come and go, but LLP goes forever. LLP continue होगा unless and until they want to get dissolved. अगर वो डिसोल्यूशन नहीं चाहते तो LLP year after year क्या होगा, it will continue. Easy to form. Now formation of partnership registered under the Partnership Act 1932 is easy. The same advantage has been continued under LLP also. कंपनी का फॉर्मेशन इज लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन LLP का फॉर्मेशन दो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ROC, Registrar of Companies, but still LLP का formation is quite easy as compared to the company. कंपनी के formation से LLP का formation is quite easy. What it says, the formation of LLP is much easier than that of the company. कंपनी के मुकाबले में जैसा partnership registered under the Act 1932 easy है, उसी तरह partnership to be registered under the LLP Act 2008 भी it is quite easy. Easy to dissolve in the same manner जैसा उसका फॉर्मेशन है उसका डिसोल्यूशन भी क्वाइट इजी है। कंपनी का डिसोल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन LLP का डिसोल्यूशन इज वेरी इजी। जैसे कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इजीली डिसॉल्व हो सकता है, इजीली फॉर्म हो सकता है, तो वो सेम एडवांटेज LLP के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। The dissolution of LLP is much easier than that of company. A foreign national can become a partner in LLP. यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन नहीं है, जो फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन नेशनल, अगर उसको आपके LLP में पार्टनर बनना है तो LLP Act 2008 allows that foreign national to become a partner under the LLP. Whistleblower का मीनिंग क्या है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पार्टनर को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फॉल्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन उसको हाईलाइट करता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताता है। तो ऐसे पर्सन को यू कॉल इट एज अ विसल ब्लोअर, जो आपके आसपास में अगर कुछ गलत हो रहा है और बाकी सब लोग चुप है, तो आप अगर उस चीज को बताते हो, ब्लो करते हो, तो सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ विसल ब्लोअर। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ LLP. हाउ? Under the LLP Act 2008, provisions has been made to provide a protection to the employees and a partner, providing useful information during an investigation or convicting any partner or firm. यहाँ पे विसल ब्लोअर यानी यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन उस LLP में निकलता है तो there is a provision provided under the LLP Act 2008 which encourages a person to highlight such defaults, such fraud. What is an objective of introducing this whistleblowing provision is so that that particular LLP protects the rights of other partners and employees.
जैसे कि कंपनीज के केस में होता है कि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स से पैसा लेके उसको मिसयूज करते हैं, तो कंपनी एक्ट के अंदर भी एक विसल ब्लोअर का प्रोविजन आया है कि इट एनकरेजेस द पर्सन टू कम अप विथ ऑल सच डिफॉल्ट। अगर कंपनी में ऐसे कुछ डिफॉल्ट हो रहे हैं तो एक कि पर्सन को एनकरेज करता है कि आप बताओ, हम आपको आई मीन मॉनेटरी या विद सर्टन वे में कॉम्पेंसेट करेंगे फॉर आई मीन हाईलाइटिंग ऑल दिस। तो इन द सेम मैनर एलएलपी के केस में भी विसल ब्लोइंग का प्रोविजन रखा गया है विच एनकरेजेस इनडायरेक्टली अ पर्सन टू कम अप in front of an investigating agencies as regards to any fraud which are incurring under the partnership। अगर पार्टनरशिप में कोई फ्रॉड हो रहा है तो अगर इन्वेस्टिगेशन निकलता है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने वो पर्सन, ये प्रोविजन उस पर्सन को एनकरेज करता है कि आप बताओ कि ये एलएलपी के अंदर फ्रॉड हो रहा है। तो दीज आर सर्टन एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। Then essential elements to incorporate. What are the things necessary to incorporate? Incorporate का मीनिंग क्या है कि किसी अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना, दैट इज कॉल्ड एन इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या चीजें जरूरी है विच टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी? एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए, एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स है, दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। Under the LLP Act 2008, the following elements are very essential to form LLP in India. What it says: to decide about partner and to appoint minimum 2 individual as designated partner. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको LLP फॉर्म करना है तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन लोग उसमें भागीदार बनेंगे, कौन कौन लोग उसमें पार्टनर्स बनेंगे, और उन पार्टनर्स में से कम 2 पार्टनर हैज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस द पार्टनर व्हिच विल लुक आफ्टर एंटायर अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो व्हाट इट सेज, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। कम से कम एक पार्टनर क्या चाहिए, रेसिडेंट, यानी 2 इंडिविजुअल, दोनों भी रेसिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं या फिर कम से कम एक तो भी इंडियन रेसिडेंट चाहिए और एक फॉरेन नेशनल हो सकता है। ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ DPIN बिफोर अपॉइंटमेंट। DPIN इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि इफ, जैसे कि कंपनी के केस में वेयर अ member or where the shareholders want to act as a director of the company, promoter of the company, so he should have a DIN number, DIN, that is Director Identification Number. In the same manner, कंपनी के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पार्टनर जो अपने आप को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए अपना कंसेंट देते, अपना अप्रूवल देते, तो बिफोर एक्टिंग एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर दोज पार्टनर शुड ऑब्टेन अ DPIN थ्रू MCA और ROC। ROC से उनको DPIN नंबर लेना पड़ेगा। देयर इज अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन DPIN नंबर वेयर देयर इज अ फॉर्म which has to be online submitted, it gets approved and they will allot you a DPIN, that is called as a designated partner identification number। that means कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले उनको DPIN नंबर लेना मैंडेटरी है। अब प्रायर कंसेंट, फर्दर व्हाट इट सेज, अ प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर टू बी ऑब्टेन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर बिफोर द अपॉइंटमेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए पहले आपको DPIN नंबर लेना मैंडेटरी है और दूसरा जो फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको सबमिशन देना पड़ेगा, यानी आपको आपका कंसेंट देना है। कंसेंट ये कि आप बिना किसी के जोर जबरदस्ती आपने आपका कंसेंट दिया है, आपका खुद का अप्रूवल है कि आप इस LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, तो वो कंसेंट लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा जो आपको बताता है कि यू आर रेडी टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। देन टू हैव अ LLP नेम, LLP का नाम
आप कोई भी नाम रख सकते हो। इन द एंड, जैसे कंपनी के केस में लास्ट में देयर इज अ कंपनी इन द एंड, इन द सेम मैनर इन द केस ऑफ LLP also the last wordings will be LLP. What it says, the LLP cannot have the same name with any other LLP partnership firm or company. यानी आपका नाम यूनिक चाहिए, it should not resemble to already registered LLP, already registered company. अगर उस नाम से ऑलरेडी कोई पुराना LLP या कंपनी है तो सेम नाम आप नहीं रख सकते। यही केस कंपनी में भी है कि कंपनी अगर एक नाम से रजिस्टर्ड है तो आप उसी नाम से आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर, अगर एक नाम से ऑलरेडी LLP रजिस्टर्ड है तो उसी नाम से आप आपका LLP रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस to which all the communication and notices may be addressed and where they shall be received. You should also have one principal place of business और registered address जहां पे आप ROC और ROC आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, यानी जो भी आपको लेटर्स वगैरह भेजना है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको मिलेंगे। तो आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। देन टू एग्जीक्यूट अ LLP एग्रीमेंट similar to a partnership registered under the Partnership Act 1932, जहां पे you prepare a partnership deed or a partnership agreement which defines all the clauses as regards to rights and duties of the partner. In the same manner आपको LLP के केस में भी LLP agreement बनाना है। अगर LLP agreement के अंदर rights and duties of the partners will be defined, लेकिन अगर LLP agreement वो rights and duties के लिए silent है तो first schedule of this act is going to guide about the rights and duties of the partners. What it says, to execute an LLP agreement, that means you will have to prepare the LLP agreement between the partners inter se or between the LLP and its partner. Between the partner inter se यानी between them, क्या उन लोगों के ifs and buts रहेंगे, क्या उन लोगों के rights and duties रहेंगे between the partners, and rights and duties of the partners and the partnership firm क्या रहेंगे, that will be defined under this particular LLP agreement. Where the LLP agreement is silent, अगर कोई particular चीज पे LLP agreement के अंदर specific clause नहीं है तो फिर you will have to refer the first schedule. फर्स्ट शेड्यूल को अगर कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें एग्रीमेंट में वो क्लॉज इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट शेड्यूल रिफर करना है जिसमें वो गाइड करेगा कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए आपने LLP एग्रीमेंट में डिटेल नहीं डाला है तो वो पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, तो वो पॉइंट के लिए यू विल हैव टू रिफर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट. व्हाट इट सेज, व्हेन द LLP एग्रीमेंट इज साइलेंट, the relevant provisions of the first schedule of the LLP act will be applied. वहां पे आपको first schedule of the act यूज करना है. The first schedule deals with the mutual rights and duties of the partner as well as LLP and its partners. LLP agreement usually consists of, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल गाइड करेगा अगर किस राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें वो पर्टिकुलर केस के राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखे गए तो फिर आपको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट को रिफर करना है और उस एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है वो प्रोविजन विल बी अप्लाइड. LLP एग्रीमेंट में जनरली क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉर्मली वही सब चीजें इंक्लूड होंगी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंक्लूड होता है विच इज प्रिपेयर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वो सब प्रोविजंस इंक्लूड होंगे, वो सब क्लॉजेस इंक्लूड होंगे. व्हाट आर द थिंग्स दे हैव गिवन, व्हाट विल बी इंक्लूडेड अंडर द LLP agreement? Name of the LLP, address of the registered office of LLP. What they have said कि एक registered office होना जरूरी है, जैसे कि पार्टनरशिप में principal place of business, यहाँ पे registered office. Name and address of each partner as well as designated partner of LLP. Proposed business, आप क्या business करने वाले हो LLP के अंदर. फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप के केस में बोला गया है तो यहाँ पे भी पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उस पर आप इंटरेस्ट कितना देने वाले हो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रूल्स फॉर गवर्निंग LLP. तो all these will be included under the LLP agreement which will be prepared between the partners.
नेक्स्ट is to complete and file incorporation document along with the compliance statement. आप ये सब चीजें आप फुलफिल करोगे। क्या फुलफिल करोगे? आप पार्टनर्स कौन कौन होने वाले हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन होने वाले हैं, ये ध्यान रखना है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 चाहिए और उसमें एक फॉरेन नेशनल चाहिए। और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने से पहले उनको DPIN नंबर लेना मैंडेटरी है और उसके अलावा उनको एक कंसेंट अपलोड करना है। जो भी फॉर्म दिया गया है उसके अंदर उनको उनका कंसेंट देना है कि दे आर रेडी टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। दे विल हैव टू प्रिपेयर द LLP agreement. LLP agreement will include almost all those clauses which are generally included under the partnership registered under the Act 1932. उसके अलावा उनको LLP का नाम अप्रूव करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर्म करना है। तो ये सब चीजें आपको प्रायर करना है बिफोर रजिस्टरिंग एज एन LLP। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू कंप्लीट एंड फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द कॉम्प्लायंस स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस विद द रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिकली। यानी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के पहले आपको ये सब चीजें कर लेना है। पार्टनर्स के एग्रीमेंट बना लेना है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का पहले DPIN नंबर लेना है, उनका कंसेंट अपलोड करना है। LLP का नाम क्या रखने वाले हो उसका अप्रूवल आपको लेना है। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ रहेगा उसका रिक्वायर्ड डिटेल आपको ROC के अंदर देना है। ये सब चीजें अगर हो गई तो उसके बाद यू आर गोइंग टू complete the incorporation document and you are going to upload it and you are going to pay the fees. To file the LLP agreement with the registrar within 30 days of the incorporation of LLP. आप ये सब चीजें करने के बाद आपका incorporation अगर हो जाता है, अगर incorporation नहीं होता है, अगर वहाँ पे ROC से कोई क्वेरीज आती है कि आपने जो एक आध डॉक्यूमेंट आपका अपलोडिंग का रह गया, तो आपको पहले क्वेरीज दूर करना है और उसके बाद जैसे आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा फिर आपने जो LLP एग्रीमेंट बनाया है उसको विदिन 30 डेज यू हैव टू फाइल, रजिस्ट्रार को आपको वो फाइल करना है, आपको अपलोड करना है। तो किस तरीके से LLP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे वो स्टेप्स दिया है कि 1 by 1 what is how you are going to go with LLP formation, how you are going to incorporate your LLP, that has been given under point number 5, that is steps to incorporate LLP। आपको LLP अगर ROC में रजिस्टर्ड करवाना है, आपको फॉर्म करना है, तो क्या क्या चीजें मैंडेटरी है, आपको किस तरीके से उस फ्लो में जाना है, किस तरीके से आपको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि आपको नेम रिजर्व करना है। नेम रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि आपका नाम जो आप रखना चाहते हो वो नाम का आपको ROC से अप्रूवल लेना है कि क्या मैं ये नाम अपने LLP का रख सकता हूँ क्या। तो जब आप वो नाम के अप्रूवल के लिए भेजते हो तो वहां पे रिक्वायर्ड ऑफिसर इज गोइंग टू चेक कि ये जो नाम आप ले रहे हो क्या इस नाम से ऑलरेडी कोई दूसरा LLP या कोई ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है क्या। वो आपको मिलेगा ये नाम ऑलरेडी है, तो वहां पे प्रायोरिटी लिस्ट रहता है कि 1 by 1 आप 6 नाम कम से कम भेजते हो और उसका वैसे प्रायोरिटी वाइज अगर पहला नाम आपने भेजा और ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर्ड है तो दे विल गो विद द सेकंड नेम। लेकिन आपने जो नाम भेजे उस नाम से ऑलरेडी अगर LLP या कंपनी फॉर्म है तो देन दे विल आस्क यू टू गिव सर्टेन अदर नेम्स फॉर द पर्पस ऑफ LLP फॉर्मेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपको कि आप जिस नाम से आपका LLP फॉर्म करना चाहते हो वो नाम को अप्रूव करवाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेम रिजर्वेशन। उसके लिए उन्होंने दिया है E-Form 1। ई इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग है, यहाँ पे मैनुअल सबमिशन नहीं है, तो जितने भी फॉर्म है उसको ई लगाया गया है उसके आगे। फॉर्म 1 इज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। आप आपका LLP का जो नाम रखना चाहते हो वो फॉर्म नंबर 1 में देंगे और उसके आगे उन्होंने दिया है ई का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑल द फॉर्म्स आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बिकॉज इट हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट अपलोडेड। इट सेज दैट फाइल E-Form 1 for ascertaining the availability and reservation of the name of LLP business। तो आप E-Form 1 के अंदर आप आपका नाम का डिटेल भेजते हो
वो ऑफिसर चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि ये बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम में, तो नाम का रिजर्वेशन कर देंगे, यानी आपका नाम ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको आगे के प्रोसीजर्स करना है। दे विल गिव यू अप्रूवल कि आप ये जो नाम चाहते थे, आपने जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट में भेजे नाम, उसमें से हमने ये नाम आपका अप्रूव कर दिया, आप इस नाम से आपका एलएलपी का आगे फॉर्मेशन कर सकते हो। सेकेंड है आपका स्टेप नंबर 2, incorporate the LLP, that is registered the LLP. What has to be done? Again, file e-form 2, again electronic form 2 for incorporating a new LLP and obtain the LLPIN Limited Liability Partnership Identification Number. जैसा CIN होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी तरह यहाँ पे होता है LLPIN, that is Limited Liability Partnership Identification Number. डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी आपने रेडी कर लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स को ये पर्टिकुलर ई फॉर्म 2 के अंदर जो भी डिटेल्स मांगी है वो ई फॉर्म 2 में आप पूरा डिटेल्स भेजते हो और आप आपके कंपनी को आपके एलएलपी को आप रजिस्टर्ड करवाते हो, इनकॉर्पोरेट करवाते हो। तो सबसे पहले ई फॉर्म 1 में आप आपका नाम का रिजर्वेशन करोगे, आप नाम का अप्रूवल लोगे और ई फॉर्म 2 के अंदर आप आपका एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करवाओगे और LLPIN नंबर लोगे, that is Limited Liability Partnership Identification Number. What is the note they have given? E-form 2 contains the detail of LLP proposed to be incorporated, partners, designated partners detail and consent of the partners, designated partner to act as a partner and designated partners. तो E-form 2 आपको आपके LLP को इनकॉर्पोरेट करना है। तो E-form 2 में क्या क्या डिटेल रहती है, तो वो क्या बोल रहा है, contains the detail of LLP proposed to be incorporated. आप LLP जो फॉर्म करने वाले हो उसका डिटेल कि क्या करने वाले हो। दूसरा, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनर्स की पूरी डिटेल, कौन कौन पार्टनर्स रहने वाला है और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होने वाले, कंसेंट ऑफ द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी उनका अप्रूवल, यानी किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, वो उनका खुद कंसेंट से वो पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे। तो ये ई फॉर्म 2 के अंदर डिटेल्स रहती है फॉर द पर्पज ऑफ incorporating an LLP. First is to reserve the name, second is to incorporate an LLP. For the purpose of incorporation you have to submit E-form 2 और E-form 2 के अंदर क्या डिटेल्स रहती है, E-form 2 के अंदर you have a detail about LLP जो आप फॉर्म करने वाले हो, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिटेल और उनका कंसेंट। थर्ड इज स्टेप 3 LLP एग्रीमेंट। अगर नाम अप्रूवल हो गया तो फिर आप E-form 2 अपलोड करेंगे कि ये नाम से हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये हमारे पार्टनर्स के डिटेल है और ये डिटेल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के। फिर से वो E-form 2 अपलोड करेंगे, फिर से ऑफिसर वेरीफाई करेगा, उसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज बराबर है, वो E-form 2 को अप्रूव कर देगा, आपके LLP को इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो आपका नाम आ गया, आपका LLP इनकॉर्पोरेट हो गया। अब बारी है, आपने जो LLP एग्रीमेंट बनाया है तो वो LLP एग्रीमेंट को आप E-form 3 के अंदर अपलोड करेंगे। फाइल LLP agreement in E-form 3 with the registrar within 30 days of the incorporation of LLP. As soon as your LLP is incorporated, within 30 days you have to upload in E-form 3 your LLP agreement. जो भी आपने LLP agreement बनाया वो अप्रूव करना है। फिर से ऑफिसर चेक करेगा कि LLP एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्लॉज ऐसा तो नहीं है जो दायरे के बाहर है या फिर अनलॉफुल है। तो वो अगर वो पर्टिकुलर क्लॉज इज अनलॉफुल और विच इज नॉट प्रॉपर, देन दे विल कम अप विद अ क्वेरी एंड दे विल आस्क यू टू रीड्राफ्ट योर LLP एग्रीमेंट एंड रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर। तो दिस इज हाउ द एंटायर फ्लो गोज फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP। तो E-form 2 जब आप फाइल करते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का आप जो डिटेल देते हो, तो उसके पहले उस डेजिग्नेटेड पार्टनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है, क्योंकि वो नंबर लिए सिवा आप E-form 2 नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि E-form 2 के अंदर द पार्टनर्स हु एग्री टू एक्ट
एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जरूरी है। तो आपको DPIN नंबर देना वहां पे जरूरी है, उसके सिवा आप ई फॉर्म 2 फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड LLP। जस्ट विल गो थ्रू दिस कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। What it has been said, regulating law, obviously partnership, normal partnership registered under the Partnership Act 1932 will be guided by that act, and the partnership registered under the LLP Act 2008 will be guided accordingly. Body corporate, partnership firm is not a body corporate. However, LLP को एक essential feature दिया गया है कि LLP act as a body corporate, वो एक separate body है जहां पे जो भी contract बनेगा वो LLP के नाम से बनेगा। तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट whereas LLP is a body corporate. Similarly, partnership registered under the Partnership Act 1932 is not a separate legal entity. However, LLP is a separate legal entity. Perpetual succession. Now, in the case of partnership registered under the Act 1932, it does not have a perpetual succession. अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या इंसॉल्वेंट होता है, तो द पार्टनरशिप फर्म हैज टू गेट डिसॉल्व इफ कंटिन्यूएशन का क्लॉज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो क्लॉज है और बोला गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और रिमेनिंग पार्टनर आर एटलीस्ट 2 और मोर देन 2, दे कैन कंटिन्यू, तो इस क्लॉज में दे कैन कंटिन्यू। लेकिन LLP को परपेचुअल सक्सेशन का फीचर दिया गया है, पार्टनर्स में कम एंड गो, लेकिन LLP विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर। तो व्हाट इट सेज, इट डज नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और अनसाउंडनेस में अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस। हाउएवर LLP हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, the death, insolvency, unsoundness of member does not affect its existence. Members may come and go, but LLP goes forever. Members may come and go, partners may come and go. LLP will continue year after year. Then liability of partners. पार्टनरशिप के केस में रजिस्टर्ड अंडर 1932 वहां पे liability is unlimited. Whereas in the case of LLP, the liability of partners are limited. Liability of partner is unlimited. Partner are severally and jointly, that is individually and jointly liable for the action of other partners, and the firm and liability extend to their personal asset. We have seen that the act of a partner will bind a firm. Liability of partners in LLP is limited to the extent of their contribution promised towards LLP, except in case of intentional fraud. अगर intentional fraud है तो सवाल ही नहीं उठता है, वो पार्टनर लाइबल रहेगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो LLP के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शनल है। पार्टनरशिप के केस में इट इज नॉट मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द ROF, इट में कंटिन्यू इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द LLP, वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वहां पे ऑप्शनल ऐसा कुछ है ही नहीं। और वहां पे कम से कम 2 पार्टनर और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंडेटरी होने चाहिए, उसके सिवा वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बराबर। क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, इट इज क्रिएटेड ऑल्सो बाय एन एग्रीमेंट बट अंडर लॉ, बिकॉज वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा कुछ नहीं रहता है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर 1932 के केस में वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कोई क्लॉज नहीं है, वहां पे वर्किंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, ऐसे कुछ क्लॉजेज है। लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर्स शुड बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसमें से कम 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू हैव DPIN, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिजिटल सिग्नेचर इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू जो भी आप इंटरनेट पे जो ई फॉर्म अपलोड करते हो उसको आप मैन्युअली साइन नहीं करते हो, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप दैट डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक अ पेन ड्राइव।
विच कैरी योर सिग्नेचर, उसको आपको अटैच करना पड़ता है थ्रू यूएसबी, और आप वो जितने भी ई फॉर्म अपलोड करेंगे उस ई फॉर्म को वो डिजिटली साइन करेगा, ना कि मैन्युअली साइन करेगा। डिजिटल सिग्नेचर का ऐसा कोई क्लॉज पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर 1932 नहीं है, वहां पे मैन्युअली यू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट। लेकिन इन द केस ऑफ एलएलपी सभी डॉक्यूमेंट यू अपलोड ऑनलाइन, सभी ई फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो वहां पे मैन्युअली साइन नहीं करना है, वहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर पार्टनर्स के होने मैंडेटरी है, बिकॉज ऑल दोज ई फॉर्म हैज टू बी इंटरनेट के थ्रू हैज टू बी अपलोडेड एंड it has to be signed through digital signature. So what it says, there is no requirement of obtaining digital signature. However, at least one designated partner must have a digital signature since e-form are filed electronically. Liability of partners for legal compliance. All partners are liable for legal compliance. Only designated partners are liable for legal compliance. यहाँ पे partnership के केस में registered under 1932 we have seen that even जो है डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर्स लीगल कॉम्प्लायंस के लिए लायबल है। लेकिन यहाँ पे लीगल कॉम्प्लायंस यानी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज एलएलपी के केस में कौन कंप्लीट करेगा? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेम ऑफ द एंटिटी, इट कैन हैव एनी नेम एज पर चॉइस, लेकिन एलएलपी के केस में इन इट्स नेम टू कंटेन एलएलपी और एलएलपी एज सफिक्स, और वहां पे एलएलपी के केस में नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप के केस में नाम डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन एलएलपी के केस में आपका नाम दूसरे एलएलपी या कंपनी से जुदा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता है। और आपके नाम के आगे you will attach limited liability partnership or LLP as an affix similar to a company. कंपनी के केस में last wording is always a company, similar to LLP के केस में भी last wording is LLP. Next is mutual agency. Partners are the agent of the firm and other partners. We have seen that के सभी partners एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल है। एक पार्टनर अगर कुछ करता है और उसमें कम ज्यादा हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, तो उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे भी आएंगी और बाकी पार्टनर्स पे भी आएंगी। लेकिन एलएलपी के केस में पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनर्स दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है, बल्कि वो एलएलपी का एजेंट है, क्योंकि एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स काम करते हैं वो एलएलपी के लिए काम करते हैं। एलएलपी एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बिहाफ पे पार्टनर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है, दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है। तो जो पार्टनर अगर वहां पे कोई गलती करेगा उसके लिए एक दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वहां पे एलएलपी को ये देखना है कि पार्टनर्स कोई गलती नहीं करता है। एडमिशन ऑफ माइनर, in the case of normal partnership, minor can be admitted to the benefit of partnership. Minor cannot be admitted in the case of LLP. Normal partnership में minor admit हो सकता है, LLP पे admit नहीं हो सकता है. Can a foreign national become a partner? In the case of normal partnership, foreign national cannot become a partner, whereas in the case of LLP, a foreign national can be a partner in LLP. Fine. Number of members. In the case of normal partnership, कम से कम 2 लोग, और ये जो आगे के क्लॉज दिए मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इट वाज अर्लियर। नाउ उन्होंने कम से कम क्या कर दिया है कि कम से कम 2 पार्टनर और ज्यादा से ज्यादा 100, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नाउ at maximum number of members and maximum number of partners can be 50. तो here this clause has to be rectified. Fine. यहाँ पे क्या बोला है? In the case of LLP minimum 2 और maximum पे कोई सीलिंग नहीं है। मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं इन द केस ऑफ LLP। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? इन द केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप 100 हो सकता है, और एज पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट अभी कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स कितने हो सकते हैं इन द नॉर्मल पार्टनरशिप? 50 बराबर।
उसके बाद विसल ब्लोइंग ऐसा कोई प्रोविजन नॉर्मल पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 1932 नहीं है, लेकिन विसल ब्लोइंग का प्रोविजन उन्होंने एलएलपी के अंदर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज. नो सच प्रोविजन इज प्रोवाइडेड. Provision has been made to provide the protection to employees and partners, providing useful information during investigation or convicting any partner or firm. And last one is annual filing with registered ROF पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932. वहां पे एनुअल फाइलिंग ऐसा कोई चीज नहीं है. वहां पे आपको ROF के अंदर कोई एनुअल रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत, वहां पे कोई क्लॉज ही नहीं है एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न. लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ LLP में क्या बोला गया है कि वहां पे आपको कुछ एनुअल फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न्स करने पड़ेंगे. तो व्हाट इट हैज बीन सेड, नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द ROF रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. However, in the case of LLP आपको एनुअली क्या करना है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करने, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है. स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी इज अ स्टेटमेंट विच शोज दैट कि आपकी फर्म जो है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द LLP सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है. और एनुअल रिटर्न एक स्पेशल फॉर्म है, एक स्पेशल रिटर्न है, स्टेटमेंट है that has to be annually filed by the LLP under the ROC, required to be filed with the registrar of LLP every year. तो यहाँ पे नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में आपको कोई एनुअल फाइलिंग करना नहीं है, सिर्फ जो इनकम टैक्स के रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना है. लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स के रिक्वायरमेंट के अलावा भी ROC के अंदर दीज आर द 3 थिंग्स विच यू हैव टू फाइल एवरी ईयर. एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं, एक सॉल्वेंसी स्टेटमेंट फाइल करना है और एनुअल रिटर्न फाइल करना है एवरी ईयर विद द ROC. So these were the distinction between normal partnership and partnership registered under the LLP Act 2008. I hope you have enjoyed the lecture, understood the concept. Still, if you have any doubt, please ping me. Bye everyone.